Hello all, welcome back to Progress with Prachi. I'm Prachi Soni from Gandhi Senior Secondary Public School, and today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography. This book. So in this series, we have already completed the first three chapters of this book, and we are currently on chapter number 4. And chapter number 4 is also in its last leg. So if you are new to this series, I would request you to please go through the previous videos and then come for this one to have a basic general idea of what we are studying, because this is physical geography and every concept of this book is interrelated. So it is advisable for you to please watch the previous videos beforehand. In the last class we were talking about, in this whole chapter we were talking about the how the continents, oceans, how these things form. So Alfred Wegener came up with the story, with a theory of continental drift, for which he has given some evidences and some forces responsible for it, and then the scholars, then the other scientists like Arthur Holmes, Harry Hess has given their theories of convectional current, sea floor spreading, and today we would be talking about one more theory which again justifies the continental drift theory further. So the thing which is true, हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, एक चीज़ आप समझिए, that continents were together. There was a single landmass known as Pangaea. There was a single water mass known as Panthalassa. But there are several reasons pertaining to why they got separated, why it is the situation which is happening currently, what could be the future outcome. So all these things vary a lot. In this only we studied about sea floor spreading, convectional current, and today we will be talking about plate tectonic theory. A part of this you must have studied in your class 9th geography, I guess. So it would be more elaborate than that one. So plate tectonics, since the advent of the concept, जब से हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया, तब से जो स्कॉलर्स, जो साइंटिस्ट थे, उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया ओशंस के बारे में जानने के लिए, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानने में. तो 1967 में तीन जोग्राफर्स, आपके मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली जो भी इनके पास अवेलेबल आइडियाज थे इसको कलेक्ट किया and came out with another concept termed as plate tectonics. और इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट निकाला? आपका प्लेट टेक्टोनिक. Their concept was plate. Now a tectonic plate, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं. एक टेक्टोनिक प्लेट को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर होता है ना, ऊपर वाली जो लेयर होती है, क्रस्ट वाली, उसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं. ये काफ़ी मैसिव, यानी कि काफ़ी बड़ा इरेगुलर सॉलिड स्लैब होता है, इरेगुलरली शेप्ड. आप मान लो कुछ इस तरह, ये आपकी क्या है, ये तो बड़ी छोटी छोटी सी लग रही है, बट एक्चुअली में बहुत बड़ी ह्यूज होती है. अब ये आपका पूरा वर्ल्ड कुछ ऐसी प्लेट टेक्टोनिक्स में डिवाइडेड है. तो ये ह्यूज मैसिव है, बड़ी आपको दिख रही है, मैसिव शेप इनकी इरेगुलर है और सॉलिड होती है, यानी कि हार्ड होती है. जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड लिथोस्फेरिक, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फेयर. दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. प्लेट पे जरूरी, प्लेट तो ये क्या है, ये तो ऊपर वाली लेयर है ना, इसके नीचे आपकी मैंटल है, इसके नीचे आपका लोअर क्रस्ट, लोअर मैंटल है, फिर आपका इनर कोर है, आउटर कोर. तो ये क्या है कि पूरी लेयर्स ऐसे हैं. इसके ऊपर ओशन भी हो सकता है और कॉन्टिनेंट भी हो सकता है. इसका मतलब कि यहाँ पे आपका ये तो जरूरी नहीं है कि ये जो ये लेयर है आपकी, तो ओशन भी हो सकता है और कॉन्टिनेंट भी हो सकता है. अब ये वाली जो प्लेट है आपकी, थोड़ा सा अब ये वाली जो आपकी प्लेट है, आप देखो, ये प्लेट स्पेसिफिकली इस प्लेट पे फोकस करना, इसमें कॉन्टिनेंट भी है और ओशनिक एरिया भी है. देख रहे हो, कॉन्टिनेंट भी है और ओशन एरिया. तो एक प्लेट पे कॉन्टिनेंट ओशन दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं.
हो भी सकता है ना हो भी सकता है हो। सिर्फ ओशन की प्लेट्स भी होती हैं और सिर्फ कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स भी होती हैं और मिक्स प्लेट्स भी होती हैं। तो तीनों तरह की प्लेट्स आपको मिलेगी, यानी कि एक प्लेट हो सकती है जिसके ऊपर सिर्फ ओशन हो, एक प्लेट हो सकती है जिसके ऊपर सिर्फ कॉन्टिनेंट हो, और एक प्लेट हो सकती है जिसके ऊपर ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों। तो इस तरह की प्लेट होती है। Now, plates move horizontally over the asthenosphere as rigid plates. अब मैंने पहले भी बात कर चुके हैं हम इस बारे में कि ये जो प्लेट्स होती हैं ये हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब ऊपर नीचे नहीं जाएंगी, साइड में, इधर साइड में या इस साइड में और ये इस साइड में। तो ये क्या करेंगी, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, या अपने आपस में कोलाइड करेगी, या एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी। तो ये इनको भी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये हॉरिजॉन्टली सीधा सीधा मूव करती हैं, ऊपर नीचे नहीं जाती हैं। लेफ्ट राइट जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जाती है, नॉर्थ साउथ नहीं जाती हैं, या फिर आप लेफ्ट राइट जाती हैं, अप और बिलो नहीं जाती हैं। समझ में आया? नेक्स्ट इज दिस लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल विद द थिकनेस वैरिंग। अब ये जो लेयर होती है ये क्या होती है आपकी, इसकी जो थिकनेस, चौड़ाई, मोटापा होता है वो कॉन्टिनेंट के केस में देखो, यहाँ से यहाँ तक नापूंगी तो ये करीबन 200 किलोमीटर तक पड़ जाता है। बट अगर यहाँ से देखें तो यहाँ तक आपका इट इज लाइक 5 to 100 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस होता है। जो ओशनिक क्रस्ट होता है, ओशनिक जो होती है वो आपकी 5 से 100 किलोमीटर के अंदर हो जाती है, और जो कॉन्टिनेंट वाली होती है इट्स अबाउट 200 किलोमीटर इन डेप्थ। A plate may be referred to as continental plate or oceanic plate depending on which of the two occupies the larger portion of the plate. ये कह रहे हैं कि जो प्लेट का नाम है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट भी बुलाया जा सकता है, ओशनिक प्लेट भी बुला सकते हो, पर किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि एक प्लेट ओशनिक है या कॉन्टिनेंट है? पहले यहाँ देखते हैं। ये ओशनिक, ओशन, इस पे पूरे पे ओशन है तो ये क्या हो गई, ओशनिक प्लेट हो गई। इस पे पूरे पे कॉन्टिनेंट है, ये क्या हो गई, कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब ये वाली जो प्लेट इसमें दोनों चीज़ें, इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ओशनिक कौन सी है और कॉन्टिनेंटल कौन सी है? इसके लिए हम देखेंगे कि किसका कंटेंट ज़्यादा है। अब मैंने ओशन वाली इतनी है और कॉन्टिनेंट इतना है, तो ये कैसे हो जाएगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब एक और प्लेट बनाते हैं जिसमें ओशन इतना है और कॉन्टिनेंट इतना है, तो ये कौन सी प्लेट हो जाएगी, आपकी ओशनिक प्लेट। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ तक प्लेट है आपकी, ओशन ज़्यादा है या कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, ओशन ज़्यादा है, तो ये आपकी कैसी हो गई, ओशनिक प्लेट। ये देखो, ये पूरे कॉन्टिनेंट पे है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी पूरे कॉन्टिनेंट पे है, ये भी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो उस प्लेट में पर्टिकुलर चीज़, यानी कि कॉन्टिनेंट ज़्यादा है या ओशन ज़्यादा है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसको हम ओशनिक प्लेट बोलेंगे या कॉन्टिनेंटल प्लेट। पैसिफिक प्लेट, अब जैसे कि जो पैसिफिक ओशन वाली प्लेट है उसमें लैंड एरिया है, बीच बीच के आइलैंड्स आएंगे, कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं, बट लेकिन क्योंकि ओशन ज़्यादा है इसलिए हम इसको पैसिफिक प्लेट बोलते हैं और ये ओशनिक प्लेट होती है। वेयर एज आपकी जो यूरेशियन प्लेट है, यूरोप की जो प्लेट है वो आपकी, इसमें कॉन्टिनेंट का पोर्शन ज़्यादा है इसलिए उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स प्रपोजेज, जो अर्थ का लिथोस्फीयर होता है वो, उसमें जो हमें थ्योरी पता चली है उसमें जो पूरी प्लैनेट है, पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में 7 मेजर यानी कि बहुत बड़ी प्लेट्स हैं और बहुत सारी छोटी छोटी माइनर प्लेट्स हैं। तो ये 7 मेजर प्लेट्स का नाम, ये जितनी भी प्लेट्स आपकी बुक में दिए हैं आपको इन सबका नाम याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये तो कुछ फिल्टर्ड है, बहुत सारी और भी हैं, बट दीज आर बेयर मिनिमम जो आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये बोल रहे हैं कि इस डिवाइड यंग फोल्ड माउंटेन्स, रिजेस, trenches, faults surround these major plates. Now for this you will have to understand, ये समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं कि किस तरह से इन प्लेट्स की बाउंड्रीज के पास आपको माउंटेन्स, रिजेस, ट्रेंचेस मिल सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वन, क्योंकि ये एक लाइन में बहुत सारी बात कर दी है, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके ओके, तो आपको सबको यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग का मतलब यंग, फोल्ड का मतलब कोई चीज़ का फोल्ड होना, यंग का मतलब जवान और फोल्ड का मतलब किसी चीज़ का फोल्ड होना। जो आपके हिमालयाज हैं ये आपकी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब ये यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं, आप समझो एक प्लेट ये थी और एक आपकी ये प्लेट। क्लियर? अब ये दोनों प्लेट्स क्या करेंगी, जब इस तरफ और इस तरफ मूव करेंगी
ठीक है। तो यहाँ पे भी मटेरियल होगा। अगर हम इसको लेटरल लेते हैं इस तरह, ठीक है, आप मान लो आप ऐसे खड़े हो और आपको मतलब ये तो हमने ऊपर से देखा, अब आप साइड से देखो तो ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो यहाँ पे कुछ मटेरियल होगा, वो कैसा होने लगेगा, वो इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड फोल्ड फोल्ड, ये इधर आती रहेगी और फोल्ड हो जाएगी। और तो ये आप देखो कि इस वजह से ये आपके माउंटेन्स की जो हाइट है वो इतनी बड़ी, तो इस तरह से आपके माउंटेन्स बनते हैं। जब प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो यहाँ का मटेरियल ऊपर जाके माउंटेन बना लेता है। फिर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएगी, ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये दूर जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गड्ढा, इसको हम बोल देंगे ट्रेंच बन जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से प्लेट्स इधर उधर जब मूव करती हैं तो ये लैंड फॉर्म्स बनाती हैं ओशन में या लैंड पे कुछ भी, तो उसको हम माउंटेन्स बोल सकते हैं, ट्रेंचेस बोल सकते हैं। कल हमने रिजेस का देखा था कि किस तरह से एक जो इधर वाली प्लेट थी वो इधर मूव कर रही थी, इधर वाली प्लेट थी वो इधर मूव कर रही थी, दोनों के इधर मूव करने की वजह से अंदर से वॉल्केनिक इरप्शंस आ गया और यहाँ पे क्या बन गया, मिड ओशनिक रिज बन गया। तो ये सारी चीज़ें प्लेट्स की मूवमेंट, बड़ी प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट इधर उधर होती हैं, तो उसकी वजह से आपको ये मूवमेंट देखने को मिलती है। हिमालयाज़ के बारे में, इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे प्रॉब्ली इन नेक्स्ट क्लास कि इंडिया कैसे बना, इंडिया कैसे साउथ अफ्रीका से उठ के आपका यूरोप में आके चिपक गया, माउंटेन्स कैसे बने। सो दिस वुड बी सीइंग, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये जो एक ये आपका मैप बना हुआ है मेजर एंड माइनर प्लेट्स का, तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है आपकी एंटार्क्टिका और सराउंडिंग ओशन प्लेट्स। तो आप अंटार्कटिका को देखो, नीचे एकदम सबसे एकदम साउथ में देखो अंटार्कटिका लिखा है, एंटार्क्टिक प्लेट। ये आपकी देखो कितनी बड़ी लाइन जा रही है, पूरी इतनी बड़ी प्लेट है ये आपकी एंटार्क्टिक प्लेट। नेक्स्ट है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। सेंटर में आप देखिए प्लेट 2 जो लिखा हुआ है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। आप इसके आसपास देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कितना ज़्यादा बड़ा है आपका, पूरा ये आपका डिवीजन जो हो रहा है ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का हो रहा है। फिर वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर, इसमें आपका वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर भी आ जाता है, सेपरेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिकन प्लेट अलोंग द कैरिबियन आइलैंड। अब देखो ये आपकी जो नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट है वो साउथ अमेरिका वाली प्लेट से कहाँ पे अलग हो रही है, कैरिबियन प्लेट से। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट अलग कैसे होती हैं, क्या क्या रीज़न होता है जिनकी वजह से अलग होती हैं। तो ये हो गया आपका कैरिबियन प्लेट, जो बीच में आप देख सकते हो वो आपकी कैरिबियन प्लेट हो गया। नेक्स्ट इज़ योर साउथ अमेरिकन प्लेट, जिसमें आपका वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर भी आ जाएगा और ये नॉर्थ अमेरिका से कैरिबियन आइलैंड प्लेट से अलग होती है। फिर 4th नंबर पे हमारी पैसिफिक प्लेट है। आप देखो ये पूरी जो प्लेट आपको दिख रही है ये आपकी पैसिफिक प्लेट है। और फिर आपकी इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट। आप देखो ये आपके एकदम लेफ्ट हैंड साइड में जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो लिखा हुआ है, इंडिया भी है इसमें, ऑस्ट्रेलिया भी है इसमें और न्यूजीलैंड भी है इसमें। तो ये वाला प्लेट हिल के आया है वहाँ से, जो अफ्रीका के साथ में चिपका हुआ था और उसके ऊपर आ गया है। तो ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। फिर आपका अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, आपका फिर अफ्रीका नीचे वाला है जिसको हम ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट बोल रहे हैं। अफ्रीका भी काफ़ी बड़ा है। अब आप देखो अफ्रीका की प्लेट में साथ में ओशन, पानी भी है पर कॉन्टिनेंट भी है, पर हम फिर इसको अफ्रीकन प्लेट क्यों बोल रहे हैं। और ये कैसी प्लेट होगा, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा कि ओशनिक प्लेट होगा, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा क्योंकि इसमें कॉन्टिनेंट का पोर्शन ज़्यादा है। यूरेशिया, फिर ऊपर का आप देखो पूरा ये जो पूरी यूरेशियन प्लेट है, इसमें पानी भी है और कॉन्टिनेंट भी है, पर कॉन्टिनेंट का कंटेंट इज़ सो ह्यूज, तो ये कैसी है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं, छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, इनको आपको इनकी लोकेशन के हिसाब से याद रखना होता है। जैसे कि आपकी कोकोस प्लेट है। कोकोस प्लेट आप देखो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में ऊपर साइड में नॉर्थ अमेरिका के लिखा हुआ है कोकोस प्लेट। कोको आइलैंड भी है, वो इंडियन ओशन में है, पर कोको प्लेट कहाँ पे है, आपकी पैसिफिक ओशन में है। फिर नाज़का प्लेट है, ये आपकी साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। ये जो नाज़का प्लेट है आपकी, ये सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेट है, यानी कि ये बहुत ही रफ्तार के संग मूव करती जा रही है और करती जा रही है। और अरेबियन प्लेट जो आप देख रहे हो, मोस्टली द साउथ अरेबियन लैंडमास जो आपका अरेबियन प्लेट है, फिर आपका जो भी साउथ अरेबिया का रीजन आ रहा है, इसमें छोटी सी प्लेट है बहुत साइड में आप देखो, तो आपका अरेबियन पेनिनसुला इसमें आ रहा है। फिर फिलिपीन प्लेट है आपकी, फिलिपीन प्लेट कहाँ पे है,
ये आपकी यहाँ पे होगी ये चाइना के नीचे देखो फिलीपीन आइलैंड, छोटी सी प्लेट है ये, फिलीपीन प्लेट बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट। फिर है आपकी कैरोलाइन प्लेट, ये आपकी फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में है। ये वाला आप देख सकते हो साइड में बना हुआ है, लिखा हुआ है कैरोलाइन प्लेट। फिर है आपकी फूजी प्लेट, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, इसमें नहीं बनी हुई है, बट आपकी ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो आप, ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थ ईस्ट में आप कर लो तो आपकी वो फूजी प्लेट हो जाएगी। अब इस मैप में आपको और चीज़ें भी नोट करनी है, सिर्फ प्लेट्स नहीं नोट करनी है, आपने और क्या नोट करना है इसके साथ, ये देखना है कि किस तरह से जो ये वाली ट्राइंगुलर वाली प्लेट्स है ना, वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं। जो सिंगल लाइन वाली प्लेट्स हैं वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, और लाइन वाली जो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं। तो हम इस मैप पे दोबारा आएंगे, पहले हम ये समझते हैं कि डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता क्या है, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि इसमें कौन सा मैप क्या है, किसका कैसे है, ठीक है। ओके, सो अब ये जो अपकमिंग पैराग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको लिसन वेरी केयरफुली। ये जो प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, हमने बात कर ली कि इतनी सारी हमने प्लेट्स देखी, 7 मेजर प्लेट्स देखी, बहुत सारी माइनर प्लेट्स देखी। तो ये जो प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली ग्लोब पे थ्रू आउट द हिस्ट्री, पूरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री अगर हम जाते हैं, दीज आर कंटिन्यूसली मूविंग। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेगनर ने क्या बोला था, कॉन्टिनेंट हिल के चले गए एक दूसरे से। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोल रही है नो, कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर रहे हैं, नीचे की प्लेट्स मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। सो कॉन्टिनेंट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लेट दैट मूव्स इन द प्लेट। तो कॉन्टिनेंट क्या है, वो उस प्लेट का पार्ट है, वो प्लेट जब मूव करती है तो उसके साथ साथ मूव करते हैं। Moreover, it may be noted that all the plates without exception, कोई मतलब आप कोई चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कोई भी प्लेट हो, एक्स वाई जेड एनी प्लेट, ऐसी कोई प्लेट नहीं आज तक कि जिसने हिस्ट्री में मूव नहीं किया हो, और ऐसी कोई प्लेट नहीं जिसने मूव नहीं किया। तो सारी प्लेट्स ने सम टाइम और दी अदर दे हैव चेंज्ड देयर पोजिशंस विदाउट एक्सेप्शन दैट मूव्ड इन द जियोलॉजिकल पास्ट एंड शैल कंटिन्यू टू मूव इन द फ्यूचर। और हमने देखा कि जैसे पास्ट में मूव किया है, आगे भी वो कंटिन्यू टू मूव, दे विल कीप ऑन मूविंग, देयर विल बी नो स्टॉपिंग। तो वेगनर ने जो बोला कि कॉन्टिनेंट हैड इनिशियली एग्जिस्टेड, जो वेगनर ने बोला था कि पहला एक पेंजुआ एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो बात सच है, पर वो इसलिए नहीं है कि कॉन्टिनेंट आपस में साथ में आ गए थे, बट इसलिए है कि कुछ पार्ट उस प्लेट का, कुछ पार्ट इस तरह से मिल गया था कि उसने पूरा एक लार्ज बड़ा कॉन्टिनेंट फॉर्म कर दिया। रेस्टिंग ऑन दी प्लेट्स, जो कॉन्टिनेंटल मासेस इस प्लेट के ऊपर हैं वो वॉन्डर कर रहे हैं इधर उधर, और इसकी वजह से जो पैंजिया था वो एक रिजल्ट था इन मासेस का साथ आना। साइंटिस्ट जो पेलियोमैग्नेटिक डेटा यानी ओल्ड डेटा को स्टडी, मैग्नेटिक फील्ड्स जो अंदर इनसाइड रॉक्स मिनरल्स को स्टडी करते हैं, उन्होंने डिटरमाइन किया है कि फ्यूचर में, पास्ट में इनकी कॉन्टिनेंट्स की पोजीशंस अलग थी, फ्यूचर में अलग होने वाली है। पोजीशन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, मोस्टली जो आपका पेनिनसुलर एरिया है, ये बताया गया है कि ये किस तरह से आपके सर्दर्न पार्ट में, सर्दर्न हेमिस्फेयर में था, और ये किस तरह से ऊपर मूव किया है। तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। सबसे पहली होती हैं आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, नाम से ही समझ में आ रहा है डाइवर्जेंट। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, एक भटकना। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, चेंज, रास्ते को चेंज कर देना, दूर होना। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कौन सी होती हैं, जो कि एक दूसरे से दूर जाती हैं। कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे से दूर जाती हैं। वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज दी प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। अब देखो तीनों प्लेट्स देखेंगे, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है। सबसे पहले इस प्लेट में क्या होगा, डाइवर्ज होगी, मतलब एक इधर जाएगी और एक इधर। इस केस में क्या होगा, नीचे का पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो गई, तो यहाँ का जो ये जो मटेरियल है, ये यहाँ पे पहले तो गड्ढा बनेगा इस तरह से, गड्ढा बनने के बाद धीरे धीरे जो नीचे का एक्सोनोस्फेयर वोल्केनो का मटेरियल होगा वो ऊपर आ जाएगा, और फिर इस तरीके का वोल्केनिक रिजेस बनना। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या करती हैं, क्या क्रिएट करती हैं, न्यू लैंडफॉर्म। क्या बना दिया, न्यू लैंडफॉर्म। क्रिएशन हुआ ना, नीचे से मटेरियल निकल के ऊपर आ गया, बाहर आ गया, तो उसको हमने बोला क्रिएशन, जनरेट। ये प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइट्स। और जहाँ जहाँ से प्लेट्स मूव करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं,
स्प्रेडिंग साइड्स, क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग साइड। द बेस्ट नोन, ये आपका देखो जो हमारा मिड ओशनिक रिज वाला एग्जाम्पल था, वो क्या है, वो आपकी स्प्रेडिंग साइड है जहाँ से एक प्लेट इस तरफ जा रही है और एक प्लेट उस तरफ जा रही है। At this the American plate is or are separated from the Eurasian plate and African plate। इसके केस में हमें क्या लगता है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट इधर जा रही है, साउथ अमेरिका वाली प्लेट इधर आ रही है, यूरेशिया वाली प्लेट उधर जा रही है और अफ्रीका वाली प्लेट उधर जा रही है, जिसकी वजह से बीच में आपके मिड ओशनिक रिज बन गया। फॉर दिस चैप्टर आपको वर्ल्ड मैप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो या उससे बड़े हो, आई वोंट बी टेलिंग यू दी लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। इतना बेसिक एक्सरसाइज आपको अगर एग्जाम निकालना है या नॉलेज गेन करना है तो आपको खुद से करना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट का लोकेशन कहाँ पे है। सो नेक्स्ट इज योर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट, कन्वर्ज का मतलब एक दूसरे से में भिड़ जाना, कन्वर्ज कर जाना। तो ये इधर मूव करेगी, ये प्लेट भी इधर, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, धीरे धीरे करके और पास आएगी, फिर धीरे धीरे करके और ऐसे हो जाएगी, फिर धीरे धीरे करके और इस तरह से हो जाएगी। सो दीज वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड। इस केस में क्या होगा, जो क्रस्ट होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप मान लो ना यहाँ पे ये प्लेट, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, ये इधर आया, ये इधर आया, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, आपका खराब धीरे धीरे करके टूटने लग जाएगा। क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है। द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ द प्लेट अकर्स इज कॉल्ड अ सबडक्शन जोन। और जहाँ पे ये आपका ये प्लेट आपकी सिंक कौन, एक प्लेट होती है, एक प्लेट आपकी, ये हमने पहले पढ़ा कि जो ओशनिक प्लेट होती है ये भारी होती है, हैवी होती है। क्यों हैवी होती है, पानी का वजन ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट का वजन कम है। तो ओशनिक प्लेट्स जो होती हैं, जो प्लेट्स जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है वो प्लेट्स नीचे धंस जाती हैं, और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो होती हैं जिनमें कॉन्टिनेंट ज़्यादा होता है वो प्लेट्स आपकी ऊपर आ जाती है। तो मान लो इफ दिस इज योर ओशनिक प्लेट, तो ये क्या होगा, ये नीचे धंस जाएगी। अगर ये आपकी एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है जिससे आपका लैंड मास, जब ये इधर से आएगी, ये इधर से आएगी, तो क्या होगा, ये प्लेट आपकी नीचे चली जाएगी और ये प्लेट आपकी ऊपर आएगी, फिर धीरे धीरे करके ये और पास आएंगे, तो इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं। इस जोन को हम क्या बोलते हैं, सबडक्शन। क्या बोलते हैं, सबडक्शन। उसमें हम साइड्स की बात कर रहे थे, स्प्रेडिंग साइड्स, इसमें हम सबडक्शन जोन की बात कर रहे हैं। अब ये जो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस यानी कि एक दूसरे में भिड़ना, ये 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे में मिल जाए। सेकेंड इज एक प्लेट ओशन, दूसरी प्लेट भी ओशन, दोनों मिल जाए। थर्ड इज एक प्लेट कॉन्टिनेंट, दूसरी प्लेट भी कॉन्टिनेंट, और दोनों आपस में मिल जाए। सो इस तरीके से 3 तरह की आपकी कन्वर्जेंस हो सकती है। नेक्स्ट है हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का क्या सीन है, सो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होगा ना, अब ये दोनों मस्त प्लेट हैं, ये एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, या एक इधर जा रही है, दूसरी वाली भी साथ में इधर मूव करिए। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तुम अपना चलो, मैं अपना चल रही हूँ। इसकी वजह से ये आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती हैं। ये जो क्रस्ट है यहाँ पे ना ही अब साथ साथ चल रही हैं, तो ना ही यहाँ पे कुछ क्रिएट होता है, ना ही यहाँ पे कुछ ख़त्म होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट्स बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बोलते हैं। तो आप अब देखो यहाँ पे ना कुछ क्रिएट हो रहा है, ना कुछ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो वो प्लेट जो कि कुछ क्रिएट करती है उसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं। कौन सी प्लेट बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट। अब कंस्ट्रक्टिव प्लेट और कन्वर्जेंट प्लेट सेम नहीं होगी। कन्वर्जेंट तो डिस्ट्रक्ट करती है, तो उल्टा है, डाइवर्जेंट वाली कंस्ट्रक्टिव है, कन्वर्जेंट वाली डिस्ट्रक्टिव है। अगेन डाइवर्जेंट प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, सामान को खराब करती हैं, नया सामान क्रिएट करती हैं, तो वो कैसी हैं, वो कुछ कंस्ट्रक्शन करती हैं, इसलिए उनको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स बोलते हैं।
कन्वर्जेंट प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, जो सामान एग्जिस्टिंग होता है उसको खराब कर देती हैं, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो उल्टा होता है CD CD, आप उस तरह से याद रख सकते हो। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ये क्रस्ट नीदर प्रोड्यूस, ना कुछ प्रोडक्शन है ना कुछ डिस्ट्रक्शन है, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से क्रॉस कर जाती हैं। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर दी प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू मिड ओशनिक रिज। तो आपके जो मिड ओशनिक रिज है उनसे परपेंडिकुलर, यानी कि जो आपका अगर ये मिड ओशनिक रिज है, ये मिड ओशनिक रिज है, तो इसके जो यहाँ वाली प्लेट्स और यहाँ वाली प्लेट्स हैं जनरली वो ट्रांसफॉर्म इन नेचर है। कैसी हैं? ट्रांसफॉर्म इन नेचर। As the eruptions do not take all along the entire crest at the same time, there is a differential movement of the portion. बस ये वही बात करें कि हर जगह पे एक साथ इरप्शन नहीं होता है, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, इसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म प्लेट में डिस्ट्रप्शन आ जाता है। नेक्स्ट इज योर रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। इसमें बस ये बता रहे हैं कि कितनी स्पीड, रेट यानी कि कितनी स्पीड पर ये प्लेट मूव करती है। तो जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग थी वो मैंने आपको बता दिया, नाज़का प्लेट जो है वो आपकी सबसे फास्टेस्ट मूविंग है, जो साउथ पैसिफिक में है, आपकी चिली के साइड में। आप देख लो, जो चिली कंट्री है वो यहीं पे है, साउथ अमेरिका में, चिली की शेप की ही कंट्री है। और इसके साथ वाली प्लेट जो है वो आपकी नाज़का प्लेट, वो सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेट है। और जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लेट है वो आपकी आर्टिक रिज है, जो ऊपर है आपकी आर्टिक प्लेट है, इसमें नहीं दिखाई गई है मैप में, वो वाली सबसे स्लोएस्ट मूविंग है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। रिमेनिंग बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है, बट क्योंकि इट्स अबाउट इंडिया तो इसको हमको समझने में, समझाने में समय लगेगा। सो वी वुड बी कंटिन्यूइंग दिस पोर्शन इन दी अपकमिंग क्लास। If you have any doubts, any problems, feel free to ask. There are certain maps in these books which I have attached. जो समझाया था वो तो साथ में अटैच कर दिया है, but there is another map जो आपको ये कॉन्टिनेंट्स का पास आना और दूर जाना डिस्क्राइब कर रहा है। I have attached this map at the end, so you can actually watch it. So thank you and have a nice day.